گہرائی کے ساتھ ہے. آج جو نام کے بارے میں مسٹری اور ریویلیشن آپ سیکھیں گے، آپ نے لائف بھر میں پہلے کبھی سیکھا نہیں ہوگا. اور جیسے ہی آپ یہ مسٹری اور ریویلیشن دیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے، اس پر ریاکشن کریں گے، آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آج کی سروس میں خدا آپ کے نام کو پاک کرنے والا ہے، آپ کے نام کو ڈیلیور کرنے والا ہے، آپ کے نام کو پروموٹ کرنے والا ہے، آپ کے نام کو فیمس کرنے والا ہے. آپ کا نام آپ کے مددگاروں کو اٹریکٹ کرے گا، آپ کے نام پر فیور ہوگی، آپ کے نام پر بلیسنگ ہوگی. جو کوئی بھی قرض آپ کے نام پر ہے بریک ہو جائے گا یسوع کے نام سے، بریک ہو جائے گا یسوع کے نام سے، بریک ہوگا یسوع کے نام سے. شاؤٹ فائر. آج کا میرا ٹائٹل ہے The Battle of Name. The Battle of Name. The Battle of Name. نام کی جنگ. آپ کے نام کے اوپر آپ کے پیدا ہونے کے دن سے آج کے دن تک جنگ ہو رہی ہے. اگر آپ روحانی ہیں اور بائبل کے سیکوینس کو سمجھتے ہیں تو 3 چیزیں ہر ایماندار کو ڈیل کرنی ضروری. اگر ہم پوری بائبل کی سیکوینس دیکھیں تو سیکوینس کے اندر پروفیٹیکلی اور ڈیلیورنس کے اکارڈنگ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں خدا کی بولی ہوئی نبوت کو، خدا کے بولے ہوئے معتبر کلام کی برکتوں کو، اس کے پھلوں کو ریسیو نہ کر سکے کیونکہ ان کی لائف میں کچھ ایشوز تھے. یہ 3 میجر ایشو ہیں. اگر ہر بچہ، ہر جوان، ہر خاندان اس کو ڈیل کر لے اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ 3 میجر ہماری زندگی کے پہلو کون سے ہیں؟ سب سے پہلا پہلو، ترتیب میں تو کچھ اور ہے لیکن ہم بائبل کی ترتیب دیکھتے ہیں. بائبل کی ترتیب کے اکارڈنگ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ناموں کو ڈیل کیا ہے. پیدائش کی کتاب میں نام تبدیل کیے. ابراہم سے پہلے اس کا نام ابراہم ہے. خدا اس کو برکت دے رہا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں، پر وہ برکت اس کی لائف میں مینیفیسٹ نہیں ہوئی. 25 سال پہلے ذرا سوچے خدا اترے اور خود کسی کو برکت دے. کوئی پاسٹر نہیں، کوئی بشپ نہیں، کوئی مائٹی مین آف گاڈ نہیں، بلکہ یہوہ خدا خود کسی پر برکت بولے اور وہ برکت اس کی زندگی میں وزٹ کرنا پڑا کہ ابراہم بلیس کیوں نہیں ہے، ابراہم امیر کیوں نہیں ہے، اور ابراہم بچوں والا کیوں نہیں ہے. تو خداوند نے جس چیز کو آپ نے ڈیل کیا وہ اس کا نام تھا. آمین کے بعد یہ آپ تعلیم سے تو آپ کا نام بہت ہی امپورٹنٹ ہے. صرف یسوع نام نہیں، آپ کا اپنا نام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو خداوند نے آ کر ابراہم کے نام کو ڈیل کیا کیونکہ نبوت کو کسی جادو ٹونے نے بلاک نہیں کیا، کسی دشمن نے بلاک نہیں کیا، کسی مذہبے نے، کسی بدروں نے، کسی موکل نے، کسی جن نے بلاک نہیں کیا. خدا کی بولی ہوئی برکت کو ذرا سوچیے، امیجن کریں، خدا برکت بول رہا ہے اور وہ برکت مینیفیسٹ نہیں ہو رہی. جس چیز نے اس برکت کو بلاک کر دیا ہے وہ نام ہے، وہ نام ہے، وہ نام ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیے گا اپنی روح میں، دوران کلام تجھے کس نے نام دیا ہے؟ نمبر 1، تیرے نام کا مطلب کیا ہے اور تجھے کس نے نام دیا؟ آج آپ کی زندگی کی سٹرگل آج کی سروس میں اوور ہونے والی ہے. ابراہم کی 25 سال کی سٹرگل اوور ہو گئی جب خدا اترا، اس کو نام دیا.
آج کی سروس میں خدا میرے ذریعے اپنے پاکروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اس سروس میں اترا ہے آپ کے نام کو ڈیل کرنے کے لیے. آپ کے نام کی جو کوئی بھی بیٹل ہے آج کی سروس میں اینڈ ہونے والی ہے. 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 خدا آپ کے نام کو فیمس کرنے والا ہے. خدا آپ کے نام کو اٹریکٹیو بنانے والا ہے. لوگ آپ کے نام پر فیور کریں گے. آپ کا نام پرموٹ ہوگا. یسوع کے نام سے آمین کی آواز نہیں آ رہی. آج جس کا جتنا چھوٹا آمین ہے وہ برکتیں اتنی چھوٹی لے کر جائے. جس کا آمین اونچا برکتیں بڑی ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی جس میں تعارف کروا رہا ہوں، ابھی میں کلام کی طرف نہیں آیا. تو 3 پہلو بائبل کی ترتیب سے ہر شخص کو ڈیل کرنے ضروری. ذرا سوچیں، خدا کی دی ہوئی برکت کو جس چیز نے بلاک کر دیا ہے، ڈکا لگا دیا ہے، لیٹ کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو ہر شخص کو اپنی زندگی میں ڈیل کرنی چاہیے وہ ماں باپ کا مذہب ہے. خدا نے ہر شخص کو بنانے سے پہلے اس کی تقدیر بنائی ہے. ہر شخص کی. کوئی یہاں فقیر نہیں ہے، کوئی یہاں ارب پتی نہیں ہے. خدا نے سب کو بابرکت بنایا ہے. سب کو. خدا نے کسی کو غریب کنگال یا کسی کو ارب پتی نہیں بنایا. ارب پتیوں کے سینگ نہیں ہیں، کروڑ پتیوں کے سینگ نہیں ہیں. آپ جیسے ہو. خدا نے سب کو بابرکت بنایا ہے. یہ بات سمجھ لیں. آپ کی میری آسمان پر کتاب ہے جسے قسمت کی کتاب، تقدیر کی کتاب یا مقدر کی کتاب کہہ سکتے ہیں، جس میں درج ہے آپ نے زمین پر آ کر کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے اور آپ کو کیا ملے گا. ہر شخص کی کتاب. ہم بائبل سے ابھی میں تعارف کروا رہا ہوں، یہ میسیج نہیں ہے میرا، میں انٹروڈکشن کروا رہا ہوں کہ یہ سیزن ہے کہ آپ کو ساتوں کے ساتوں سنڈے یہاں آنا ہے اور سیریسلی ان 7 سنڈے دعا کرنی ہے. ہاللیلویہ. تو جب آپ ڈیل کریں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا. تقدیر ہر شخص کی ہے. خدا نے جداؤن کی تقدیر لکھی کہ وہ جنگی سرما تھا اور وہ امیر تھا. نہ وہ اپنی ساری زندگی 25-26 سال امیر بنا نہ جنگی سرما بنا، لیکن ایک دن اس کی ملاقات خدا کے فرشتے سے ہوئی. فرشتہ آسمان کی لائبریری سے تقدیر کی، قسمت کی، مقدر کی کتاب سے پڑھ کر آیا کہ جداؤن کون ہے. فرشتے آپ کو زمینی دنیا سے نہیں جانتے. فرشتوں کو جب زمین پر بھیجا جاتا ہے وہ آپ کے نام کی کتاب لائبریری سے نکالتے ہیں اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں. پر جب اس نے کتاب کھولی اس میں لکھا ہوا تھا، جب خدا نے جداؤن کو بنایا، اس کی روح کو، اس کے بدن کو بنایا، اس کی تقدیر میں لکھا کہ جداؤن امیر ہے اور جنگی سورما ہے. پر جداؤن نیچے کنگال تھا اور بزدل تھا. جو لکھا تھا اس کے بالکل اپوزٹ تھا. آپ اپنی زندگی میں خدا کو دوش نہ دیں، خدا کو گلہ نہ دیں. آپ بھلے نکمی بیکار زندگی گزار رہے ہیں، خدا نے جو آپ کا مقدر، آپ کی تقدیر لکھی ہے، آپ اس کے اپوزٹ زندگی گزار رہے ہیں. فرشتہ بھی پریشان ہو کر چلا گیا کہ لگتا ہے کتاب میں جھوٹ لکھا ہے، نیچے تو بندہ کنگال ہے اور بزدل ہے. جب یہوہ کے پاس گیا اس نے کہا میں نے جھوٹ نہیں لکھا، اب تو نہیں جائے گا، میں خود جاؤں گا. اس نے کہا جداؤن مسئلہ آسمان پر نہیں ہے، مسئلہ زمین پر ہے. جا اپنے باپ بال کا مذبح توڑ دے. اور جیسے ہی مذبح ٹوٹا ہے، جداؤن امیر بھی ہوا ہے اور جداؤن فیمس بھی ہوا ہے اور جداؤن سورما بھی ہے. دوسرا ایشو جو آپ کو مسیح ہونے کے بعد ڈیل کرنا ہے وہ اپنے باپ دادا کا مذبح ہے. جب تک آپ کے باپ دادا کے مذبح کھڑے ہیں آپ نہ امیر ہو سکتے ہیں، نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ بلیس ہو سکتے ہیں. آپ کتنی بھی مشقت کریں گے جوانی میں، میچور ایج میں، آپ سفرنگ میں ہوں گے، کیونکہ خدا نے آپ کو سفرنگ کے لیے نہیں بھیجا. پہلا ایشو کیا ہے؟ اپنا کیا ڈیل کرے؟ اپنا نام ڈیل کرے. دوسرا ایشو کیا ہے؟
अपने माँ बाप का मसबा डील करे। तीसरा चीज आपका सितारा है। हालेलुया। तीसरा चीज क्या है? आपका सितारा है। बाइबल के अंदर उन्होंने यीशु का सितारा देखा और उसका पीछा करते हुए लोग आज आपके सितारे को देख लेते हैं, आपके स्टार का पीछा करते हैं, आपके स्टार को हाईजैक कर लेते हैं, आपके स्टार को मैनिपुलेट करते हैं, आपके स्टार को एक्सचेंज करते हैं। अगर आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी का पता नहीं है, अपने स्टार का पता नहीं, आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने स्टार को डिलीवर करना है, अपने स्टार के लिए दुआ करनी है ताकि आपका स्टार शाइन करे। आज के इस साल, इस सीजन में मैं डिक्लेयर करता हूं, हम ये सारी चीजें डील करने वाले हैं। कोई फोर्स, कोई फायर आपको बरकत हासिल करने से रोक नहीं सकता। आमीन के बाद बीमार होगी। ऊंचा जरा आमीन बोलेगा। हाथ बना के बोले थैंक यू जीसस। अपने साथ वाले को कहे तू सही जगह पर है, तेरी लाइफ चेंज होने वाली है। हालेलुया। आपको अच्छा रीडर जो बाइबल को सही पढ़े, हम टीचिंग, प्रोफेटिक टीचिंग, डिलीवरेंस टीचिंग विद डिलीवरेंस वाले मिस्ट्रीज में आपके साथ शेयर करूंगा। आज का जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो है बैटल ऑफ नेम्स, जिसमें 4-5 पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा और जब मैं एंड पर जाऊंगा, ऑलरेडी अनॉइंटिंग इस हॉल के अंदर है। आज मेरे साथ 7 एंजल्स यहाँ आए हैं और एंड पर हम एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन करेंगे और आपके नाम को डिलीवर करेंगे। कितने खुश हैं यीशु के जलाल की जोरदार तारीफ। हालेलुया। नाम की बड़ी अहमियत है। बैटल ऑफ नेम्स, बैटल ऑफ नेम्स। खुदा सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं, न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी आपको नाम दे रहा है और आज आप सारे मिस्ट्री को सीख कर जाएंगे। मिसाल की किताब उसका 22वां बाब उसकी पहली है। नेक नाम बेकयास खजाना से और एहसान सोने चांदी से बेहतर है। अमीर और गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, उन सब का खालिक खुदावंद ही है। नेक नामी बेशबहा खजाने से बेहतर। ये सुलेमान कह रहा है, गुड नेम इज बेटर देन रिचेस। अगर आपके नाम का मतलब बुरा है, अगर आपके नाम पर कर्ज है, अगर आपका नाम किसी बाप दादा के मजहबे से या जादूगरी के मजहबे से जुड़ा हुआ है, अगर आपका नाम, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाप दादा के मजहबे से जुड़ा हुआ है या किसी दुश्मन ने आपका नाम शैतान के मजहबे पर भेज दिया है, आपके नाम को जिस शख्स ने रखा है वो आपका दुश्मन बन गया है। कंडीशनें देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। नंबर 1, मैं स्लो जा रहा हूं, आपका नाम बाप दादा के मजहबे से जुड़ा हुआ है, आपका नाम किसी दुश्मन ने जादूगरी के मजहबे पर दे दिया है। तीसरी कंडीशन, आपका नाम जिस शख्स ने रखा था, जिस चाचे ने, मामे ने, मासी ने, फुप्पो ने, वही आज की रहती दुनिया में आपका दुश्मन है। आपका नाम, उसका मतलब सही नहीं है, आपका नाम ही बेहुदा नाम है जिसका मतलब बेकार है, तो समझे सीरियस इशू है। हालेलुया। वेरी वेरी सीरियस इशू है। इस इशू को सुलेमान कैसे कह रहा है कि नेक नामी बेशबहा खजाने से बेहतर है। उसने कहा अगर तुम मुझे $1 मिलियन दे दो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स दे दो, पर मुझे गंदा नाम दो, तो वो सारा खजाना बेकार है, क्योंकि नाम की वजह से वो चीजें चली जाएंगी। पर अगर ये चीजें ना हो, पर मेरा नाम आसमान से हो, खुदा की तरफ से हो, पाक हो जादूगरी से, पाक हो बाप दादा के मजहबे से, पाक हो किसी लानत से, और पाक हो हर एक शैतानी कंट्रोल से, मैं ये सारी चीजें हासिल कर सकता हूं, क्योंकि नाम के अंदर ताकत है। इसलिए यीशु ने कहा अब तक
तुमने मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा। आप खुदा से नहीं ले सकते डायरेक्ट, कितनी मर्जी दुआ कर लें, आप खुदा से डायरेक्ट नहीं ले सकते जब तक आप कहेंगे नहीं कि यहोवा बाप, खुदा बाप, मेरे बाप मुझे ये चीज किसके नाम से दे, यीशु नाम से दे। आपको नाम प्रेजेंट करना पड़ता है। तो नाम जो है जब वो प्रेजेंट करते हैं, उस नाम की खातिर खुदा को वो काम करना होता है। हालेलुया। हम बदरू निकालते हैं, हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। हम कहते हैं खुदा बच्चे दे, औलाद दे, रहम खोल दे, यीशु के नाम से। बिजनेस खोल दे, यीशु के नाम से। सेहत दे, शिफा दे, यीशु के नाम से। जब यीशु का नाम दिया जाता है, आसमान से एक पार्सल रिलीज होता है। उसने कहा तुमने अब तक मेरे बाप से, मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अगर मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाता। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आज की सर्विस में मैं यीशु के नाम से आपके नाम को डिलीवर करता हूं। आज की सर्विस में मैं खुदा से कुछ नहीं मांगने आया। आज की सर्विस में मेरी डिमांड है कि यहोवा बाप, यहोवा खुदा, यहोवा रफा, यहोवा शानु, यहोवा तकबीर, यहोवा निस्सी, यीशु के नाम से आपके नाम को डिलीवर करे, आपके नाम को डिलीवर करे, आपके नाम को डिलीवर करे। हर एक बाप दादा के मजबे से, हर एक जादूगरी के मजबे से, हर एक ईवल कंट्रोल से, हर एक कर्ज से, हर एक ईवल स्पिरिट से, हर एक नेगेटिव मीनिंग से आपके नाम को यीशु नाम से यहोवा खुदा डिलीवर करे। आमीन के बाद दो लोगों नहीं है, खड़े होकर आमीन बोलेगा। जंप एंड शाउट फायर, जंप एंड शाउट हालेलुया। बोले खुदा मेरे नाम को यीशु के नाम से तब्दील कर। हालेलुया। तो सुलेमान कह रहा है, बैठ जाए, सुलेमान कह रहा है नेक नामी बेहतर। जब हम कलाम की गहरी में जाएंगे आपको इस बेसिक आयत का मतलब पता चलेगा कि क्यों उसने बोला है, क्यों उसने बोला है कि नाम की क्या पावर है। कुछ हवाले मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रेफरेंस बताऊंगा टाइम बचाने के लिए। और आप ऑलरेडी उन हवाला जात से वाकिफ हैं और ऑलरेडी आपने उन हवालों को कई बार पढ़ा है। फिलिपियों 2:9-10 में पढ़ना नहीं है, लिखा है यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो जमीनियों का हो, ख्वाह जमीन के नीचे रहने वालों का हो। इंग्लिश में लिखा है योर नेम इज अबव एवरी नेम, योर नेम इज अबव एवरी नेम। तेरा नाम सब नामों से बुलंद है। इट मीन्स जब हम आयत की दूसरी साइड देखते हैं, आयत के कलाम दो धारी तलवार है, जब इस धार की दूसरी रुख देखते हैं तो पता चलता है कि दूसरे नाम भी अबव है। कोई नाम की बुलंदी, उसकी हाइट मिसाल के तौर पर 50 मीटर हो, अगले नाम की हाइट 70 मीटर हो, एक और नाम की हाइट 200 मीटर हो, एक और नाम की हाइट 1000 मीटर हो, दूसरे नाम की हाइट 2000 मीटर हो, एक नाम की हाइट 20,000 मीटर हो, एक और नाम की हाइट 25,000 मीटर हो, एक और नाम की हाइट 33,000 मीटर हो, एक और नाम की हाइट 35,000 मीटर हो। जहाज 35,000 ज़रे जमीन की बुलंदी से ऊंचा उड़ता है। ये मैंने जैसा आपको सिखाने के लिए बताया। उसने कहा योर नेम इज अबव एवरी नेम। जमीन पर जो नाम बुलंदियों पर है, कुछ इतनी बुलंदी पर है, कुछ इस बुलंदी पर है, कुछ इस बुलंदी पर है, कुछ इस बुलंदी पर है, कुछ बहुत बुलंदी पर है। पर उसने कहा तेरे नाम की बुलंदी जो है वो सब नामों से बुलंद है। तो इसका मतलब है, अभी हम यीशु नाम को साइड पर रखेंगे, आपके नाम की तरफ आएंगे। इसका मतलब है कि आपके नाम की शोहरत है, आपके नाम की बुलंदी है, पर इतनी बुलंदी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और आज की सर्विस में आपका नाम आपके दुश्मनों से अबव होने वाला है। आपका नाम आपके दुश्मनों के ऊपर होने वाला है। आपका नाम अपने के दुश्मनों के नीचे नहीं लिखा जाएगा, आपका नाम आपके दुश्मनों के ऊपर लिखा जाएगा। आप तुम नहीं, आप सर हैं, आप बस नहीं, आप सरफराज हैं। हालेलुया। कहा गया तेरा नाम उन नामों से अबव है। इट मीन दूसरे नाम भी बुलंद है,
पर कितनी बुलंदी है। यह कईयों का नाम तो भी उड़ा ही नहीं है, जमीन पर ही पड़ा हुआ है, धूल में ही पड़ा हुआ है, कचरे पे पड़ा हुआ है, रूढ़ी पे पड़ा हुआ है। कुछ लोगों के नाम पांव के नीचे पड़े हुए हैं, पर आज की सर्विस में गुड न्यूज ये है, खुदा आपको हाथ से उठाकर बुलंदी पर बिठाने वाला है। खुदा आपके नाम को सरफराज करने वाला है। हालेलुया। इस सैको सबाब को माइंड में रखते हुए सुलेमान कह रहा है कि जो नेक नामी है वो बेशबहा खजाने से बेहतर है। तो आज हम बैटल ऑफ नेम में यही डील करेंगे कि आपको आपके नाम को डील करना है। Can I go higher? Can I go higher? कितने लोग हाथ कर रहे हैं हायर हैं? मैं उनके लिए हायर लेवल की बातें लेकर आया। हालेलुया। नाम जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम 9 चीजों को जाहिर करता है, 9 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नाम सबसे पहले आपकी शनाख्त है, आइडेंटिटी है। नाम, अगर आज आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो जाए, आपको चाहिए कि फौरी पुलिस रिपोर्ट करवाएं गुमशुदगी की। खुदा न करे आप अपना शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है जिस पर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वालिद का नाम, खानदान का कोड, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। कोई कत्ल करे, चोरी करे, जिना करे और वहां आपका शनाख्ती कार्ड गिरा दे, पुलिस तफ्तीश बाद में करेगी, पहले आपको उठाएगी कि नहीं उठाएगी? वो कहेगी ये मौके वारदात पर शनाख्ती कार्ड मिला है, बम ब्लास्ट हुआ है, चोरी हुई है, जिना हुआ है, कत्ल हुआ है, यहां आपका शनाख्ती कार्ड मिला है। Who are you? आप जितना भी साबित करें, आप खुद को साबित नहीं कर सकते जब तक एक आला काबिल आपको वकील ना मिले जो आपको साबित करे कि ये जो है इसका शनाख्ती कार्ड है पर ये नहीं है, वरना वो साबित नहीं कर सकता अगर आपके पास पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। आप नहीं है पर आपका नाम आपको फंसवा सकता है। पॉइंट ये है, आप नहीं है, आपने नहीं किया, पर आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड आपको उस मुसीबत में फंसा सकता है कई सालों, कई महीनों तक, जब तक कोई सॉलिड सबूत ना मिले। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपकी शनाख्त जाहिर करता है, नंबर 1। इसीलिए जब कोई बीमार चर्च में आता है, बदरू गिरफ्तार आता है, तो हम वहां पर यीशु का नाम लेते हैं। और यीशु ने बीमार नहीं किया उसे, कहना को हाय, उसे यीशु ने बीमार नहीं किया, उसे यीशु ने बदरू गिरफ्तार नहीं किया। वो अपनी गलतियों से, बाप दादा की गलतियों से या दुश्मनों के साजिशों की वजह से उस हालत में गया होता है। पर जब हम वहां पर यीशु नाम लेते हैं, यीशु आकर बताता है उसके फरिश्ते पाकरू कि ये फिंगरप्रिंट्स, ये जो वाक्य पेश आया है, ये जो हादसा पेश आया है, यीशु की फिंगरप्रिंट नहीं है, ये शैतान का काम है, बदरुओं का काम है। पर क्योंकि यीशु का नाम लिया गया है, यीशु अपने नाम की गैरत की खातिर इस मुसीबत को दूर करेगा। आमीन के आवाज दूर वाली। हालेलुया। नाम आपका खानदान जाहिर करता है। लड़की जब शादी करती है, पहले उसके नाम के साथ बाप का नाम होता है, फिर बाप का नाम हटाकर हस्बैंड का नाम आ जाता है और हस्बैंड का खानदान कनेक्ट हो जाता है। नाम के साथ, नाम आपकी शिनाख्त है, नाम आपका खानदान जाहिर करता है। नाम इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रिप्रेजेंट करता है वो आपका कैरेक्टर है, किरदार। नाम आपकी समरी है, आपकी लाइफ की समरी आपका नाम है। नाम इतना जरूरी था तो खुदा ने कुछ लोगों को नाम किसी इंसान को देने नहीं दिया, खुदा खुद उतर आया और उसने कहा इसका नाम यीशु रखना। खुदा खुद उतर आया, अपने फरिश्तों को भेजा और उसने कहा इसका नाम यूहन्ना रखना। खुदा नाम को समझता है, नाम एक टेक्नोलॉजी है और इसीलिए खुदा नाम को समझ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे जो
अभी ABC वाले पादरी हैं, वो कहेंगे जी ये तो पुराने जमाने दियां गल्लां सन, पुराने अहदनामे की बातें थी। पर नए अहदनामे में भी इवन आपके मेरे मरने के बाद जो मैटर सबसे पहले ओपन होगा वो नाम का होगा। इवन मरने के बाद जो मैटर ओपन होगा वो पहले नाम का होगा। आइए देखेंगे मुकाशवा की किताब 2:17 है। तो नाम, खुदा इस जमीन पर नाम की वैल्यू समझता है, और इवन दूसरे जहान में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, रूहानी दुनिया में मरने के बाद भी जो मैटर सबसे पहले डिस्कस होगा वो नाम होगा। पढ़े 2:17। तो इसलिए जो लोग आपको ये गुमराह करें मेरी ये टीचिंग सुनने के बाद, ओ ये पुराने अहदनामे की बात है, ये पुराने अहदनामे की बात है, उनको ये बताएं कि नए अहदनामे भी खुदा ने पतरस जो है उसका कैफा, उसका नाम पतरस किया है। खुदा ने शागिर्दों के नाम चेंज किए, साउल को उसने पालूस किया है। नए अहदनामे में भी नाम चेंज हुए। अगर ना होते तो नाम की वैल्यू नहीं होती। नाम की सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, नाम की पावर है, और इवन मरने के बाद भी नाम का मैटर ओपन होगा। देखिए जरा मुकाशवा की किताब 2:17 है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या कह रहा है। आज मेरे जरिए से पाक रूह एफाता की इस कलीसिया को कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसिया से क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? जो गालिब आएंगे। आगे बढ़े। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जाने। आमीन। आप और मैं जिस दिन मरेंगे, पर वादा किया गया है जमीन पर हमें गालिब आना है, गुनाह पर, बदी पर, बदनी ख्वाहिशों पर, झूठ पर, चोरी पर, ज़िनाकारी पर, मक्कारी, हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, इस जमीन पर हमें गालिब आना है। इन चीजों पर अगर आप और मैं इस जमीन पर उन चीजों पर गालिब हैं। आदम को बनाया है, पैदाइश 2 बाब में खुदा ने आदम के मिट्टी का पुतला बनाया है जिसके नथनों में दम फूका है। आदम 2 हिस्सों में बना है, पहले उसकी रूह बनी है और फिर आदम की बॉडी बनी है, और खुदा ने रूह और बॉडी को दूसरे चैप्टर में कंबाइन किया है। हालेलुया। इसी तरह आज आप और मैं बने गए हैं, और आपके बनाने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले जो बरकतें उसने तैयार की हैं आप उनको हासिल कर सकते हैं। वो बरकतें आपको बाबा नहीं बताएगा, उसको नहीं पता, जादूगर नहीं बताएगा, उसको नहीं पता। वो बरकतें आपको माथे की लकीरें, पैरों की लकीरें, हाथों की लकीरों वाले नहीं बताएंगे, सितारों वाले नहीं बताएंगे। वो बरकतें आपको होली स्पिरिट बताएगा। उसने कहा कि खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाह में चराता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है। तो खुदा का पाकरू आपको लेना जरूरी है कि वो आपको गाइड करे। जो बरकतें तेरे बनाने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले खुदा ने तेरे लिए तैयार की हैं, पाकरू वहां आपकी रहनुमाई करेगा। पाकरू आपके कदमों को लेकर जाएगा और आप बरकतों से माला माल होंगे। आप बरकतों से माला माल होंगे। हालेलुया। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को समझिएगा कि पर्दे के पीछे होता क्या है। जब एक रूह बनाई गई है, उसका टाइम डिसाइड हुआ है कि उसने इस दुनिया में आना है, और जब वो दुनिया में आता है तो कोई भी बच्चा माँ के रहम से पैदा होता है। प्रॉब्लम सारी की सारी माँ के रहम से शुरू होती हैं, और बाकी प्रॉब्लम्स तब ऐड होती हैं जब आपको नाम दिया जाता है। जब आपको नाम दिया जाता है। आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स आपके माँ के रहम से शुरू होती हैं। आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं टॉप लेवल की, जब आपको नाम दिया जाता है। फिर दुनिया में आपके दुश्मन खड़े होते हैं जो आपको बददुआएं, कर्सिस या विचक्राफ्ट करते हैं, और आपके बाप दादा का मजहब आपसे फाइट कर रहा होता है, माँ का रहम आपसे फाइट कर रहा होता है, आपका नाम आपसे फाइट कर रहा होता है, और उसके अलावा दुनिया के जादू आपको रोक रहे होते हैं। ये 4 चीजें
रोक रही होती हैं। आने वाले सीरियल में हम बाकी चीजों को लेयर बाय लेयर डील करेंगे, पर आज मैं नाम को डील करता हूं। बच्चा फर्ज करें मां के पेट से पैदा हो गया और उसको नाम दिया गया। तुझे किसने नाम दिया? जो तुझे नाम देता है तुझे कंट्रोल करता है। और ऑलरेडी मैंने बताया आपके लिए बड़ी ही दुख की और तकलीफ की बात है, जिसने अगर आपको नाम दिया है वो अगर बंदा जादूगरी में था तो आपके लिए बड़ा ही दुख है, बड़ी ही स्ट्रगल है। और अगर वो जिंदा है और वो आपका दुश्मन है। कितने वो लोग हैं जिनको किसी ऐसे शख्स ने नाम दिया जिसका खुदा के साथ दूर दूर कोई राब्ता नहीं था, खुदा के साथ उसका कोई गुड रिलेशन नहीं था, पर उसने उसको नाम दे दिया किसी फिल्म से, टीवी से, ड्रामे से इंस्पायर होकर उसको नाम दे दिया। हाथ खड़ा करें वो लोग जिनको नाम देने वाले आज जिंदा हैं पर उनके दुश्मन हैं। हाथ खड़ा करें। ओके, जो नाम देता है वो कंट्रोल करता है। इसीलिए खुदा ने ये टेक्नोलॉजी जानते हुए आदम को कहा कि तू जानवरों को नाम दे। आए हम पढ़ेंगे हवाले पढ़ेंगे बाइबल में से, ताकि आपको समझ आए। जो नाम देता है वो क्या करता है? पॉइंट जेब में रखें। जो नाम देता है वो क्या? दो मिस और खुदावन खुदा ने कुल दस्ती जानवर और हवा के परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके लिए के क्या नाम। खुदा खुद भी नाम दे सकता था। खुदा ने तमाम चरिंद परिंद सब दस्ती जानवर, पानी के जानवर मट्टी से बनाए और किसके पास लेकर आया? आदम के पास, और कहा तू इनको नाम दे। किस लिए दिए? कि जब तू नाम देगा तू इनको कंट्रोल करेगा, तू इन पर हुकूमत करेगा, तू इन पर राज करेगा। शेर, चीता, उकाब, उल्लू, तोता, सब जानवर, चरिंदे परिंदे, वेल्स, डॉल्फिन तेरी बात मानेंगे। आज देखें दुनिया में, आप सर्कस में चले जाएं, किसी बर्ड शो में, एनिमल शो में चले जाएं, आप देखेंगे कि इंसान शेर को कंट्रोल कर रहा है, बंदर को कंट्रोल कर रहा है, हाथी को कंट्रोल कर रहा है, घोड़े को कंट्रोल कर रहा है, एक इंसान डॉल्फिन को कंट्रोल कर रहा है, तोतों को कंट्रोल कर रहा है, परिंदों को, उकाब को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? खुदा ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, आदम के पास सारे जानवर लेकर आया। आदम ने कहा तू शेर है, तू चीता है, तू गधा है, तू डॉग है। जो जो नाम दिया जानवरों का वही नाम है। इसलिए आज और मैं, आप जानवरों को कंट्रोल करते हैं। जो नाम देता है वो कंट्रोल करता है। पर मैं आज आपको गुड न्यूज़ देता हूं, जिस किसी भी दुश्मन ने तुझे नाम दिया है और वो तुझे कंट्रोल कर रहा है, तेरी कठपुतली तू रिमोट कंट्रोल की तरह उसके हाथ में है। जिस तरह हम रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके चैनल चेंज करते हैं, कभी खबरें आ गई, कभी ड्रामा आ गया, कभी खबरें, कभी टीवी, कभी कोई चीज, जो भी आप बटन दबाते हैं चैनल चेंज हो जाता है। जो आपको नाम देता है वो आपकी लाइफ के चैनल चेंज कर रहा है। रो, आप रोना शुरू हो जाते हैं। लड़, आप लड़ना शुरू हो जाते हैं। गुर्बत में चला जा, आप गुर्बत में चले जाते हैं। इसका बेबी मर जाए, मैरिज बर्बाद हो जाए। जो कुछ वो चैनल देखना चाहता है, जो आपको नाम देता है, वो कंट्रोल करता है। पर आज के कलाम की ताकत से मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं, जिस किसी भी शैतानी मर्द ने, शैतानी औरत ने तुझे नाम दिया है और तेरी लाइफ के चैनल कंट्रोल कर रहा है, मैं उन हाथों को ब्रेक कर देता हूं, 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 मैं उन हाथों को ब्रेक कर देता हूं। मैं पूरा कंट्रोल बाकियों को देता हूं। आमीन के बाद मारो वाली है। यही टेक्नोलॉजी नबूकदनेस्सर बादशाह ने चोरी कर ली। उसने कहा है कि ये नहीं जो नाम देगा वो कंट्रोल करेगा। बाबल के बादशाह ने जब दानियल उसके 200 सदरक मीसक अब्दुन्नजूब को इस्राएल से उठाया, वादे की सरजमीन से उठाया और उनको कहां ले गया? बाबल के अंदर। उसने उनको नाम दिया। पढ़ेंगे बाइबल में, किस लिए? उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कंट्रोल। आज कोई आपको प्यार से नाम देता है, ओ तू मेरा पुत्र है, तेरा नाम बबलू है। आपका नाम भी होता है, वो प्यार से आपको बबलू बबलू। असल में वो आपको लाड नहीं कर रहा, वो आपको बेबी लाड नहीं कर रही, वो आपको कंट्रोल कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर बीवियां अपने हस्बैंड को नाम दे देती हैं। वो नाम लाड नहीं है। मर्द आंखें खोल लें, कान खोल लें, वो आपको कंट्रोल कर रही है।
हम डॉगी रखते हैं, हम उसको नाम देते हैं टॉमी। टॉमी 100 टॉमियों में खड़ा हो, आपका टॉमी आएगा आपके पैर चाटेगा। क्यों? क्योंकि आपने टॉमी को नाम दिया है। टॉमी आपके कंट्रोल में है। हालेलुया। जो आपको नाम देता है वो आपको कंट्रोल करता है। बंदा बंदी परख ले, जो आपको लाड का नाम दे रहा है वो नाम बड़े अच्छा है, ओ तू मेरा बब्बर शेर है, वो आपको मछरा कर, आपको फुला कर, आपको कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। जो कोई भी इविल कंट्रोल है, मैं ब्रेक कर देता हूं यीशु के नाम से, मैं ब्रेक कर देता हूं यीशु के नाम से, मैं ब्रेक कर देता हूं यीशु के नाम से, मैं ब्रेक कर देता हूं यीशु के नाम से। याद देखिए नबूकदनेस्सर बादशाह जब इन लोगों को उठा कर लाया, नाम दे रहा, पढ़िएगा दानियेल की किताब पहला बाब 6 और 7 आए, पढ़िएगा, पढ़े जल्दी से। मैं स्पीडली जा रहा हूं, मैं कलाम को क्लोज करने वाला हूं और आपकी डिलीवरेंस का हम सेशन शुरू करेंगे। आपकी तवज्जो जरा, मेरी स्पीड तेज होने वाली है। हालेलुया। जल्दी पढ़िएगा। और खुदावंद के सरदार की नजर में मकबूल व महबूब ठहराया, चूंकि ख्वाजा सरों के सरदार ने दानियल से कहा, मैं अपने खुदावंद बादशाह से जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है डरता हूँ। पढ़ते रहे, उसने उनको नाम दिए, पढ़िएगा। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मिसाइल और उजिया थे, और ख्वाजा सरों के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेलतशस्सर और हननिया को सदरक और मिसाइल को मीसक और उजिया को। अब ये बेलतशस्सर, सदरक, मीसक, अब्दुलजूम, ये उनके ओरिजिनल नाम नहीं थे। ख्वाजा सराओं के सरदार ने, जिसे बेलतशस्सर ने उनके ऊपर मुकर्रर किया, उनको नाम दिया ताकि उनकी ब्रेन वॉशिंग करे, कॉलोनाइज करे और कंट्रोल करे, क्योंकि वो बड़े अनॉइंटेड लोग थे, उस वक्त के पावरफुल लोग थे और वो खुदा में मजबूत थे। उसने उनका नाम चेंज कर दिया कंट्रोल करने के लिए। हालेलुया। मैं जो कोई भी इविल कंट्रोल है ब्रेक कर देता हूं यीशु के नाम से। आज का टाइटल क्या है? नाम की जंग। हम देखेंगे बाइबल में 4 ऐसे कैरेक्टर जिनके नाम पर जंग हुई है, और आज की सर्विस में जो जंग तेरे नाम पर है वो एंड होने वाली है, वो एंड होने वाली है, वो एंड होने वाली है। ये हमारे चारों लाजमी पढ़ने और तेजी से पढ़ने हैं, और मुझे टाइम देना, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूं ताकि आपको नाम की जंग समझ आए। पहला हवाला पैदाइश 4 बाब 1 और 2 आयत के अंदर है। पैदाइश 4 बाब 1 और 2 आयत। पहली यहाँ हाबल बैठा हुआ था, चला गया, ओके, गौर से सुनिएगा, ये हाबल जंग में क्यों है? और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हमला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबल पैदा हुआ, और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद, आमीन, यहीं तक। पहला बेटा काइन पैदा हुआ। काइन का मतलब मुझे खुदा से मर्द मिला, पर काइन का नाम का मतलब है प्रॉफिट, फायदा, मुनाफा, गेन। प्रॉफिट, फायदा, मुनाफा, गेन, काइन का मतलब है। पर हाबल दूसरा बेटा है, छोटा बेटा जो हुआ, मां ने उसका नाम हाबल रखा। हाबल का मतलब क्या है? अवेपर, बुखारात, दम, थूक। हालेलुया। जब पानी पर थूक पड़ती है तो उसमें से बुखारात होते हैं। जब औरतें चाय पकाती हैं या पानी उबालती हैं तो पानी धुआं बनता है, स्टीम बनता है, बुखारात बनता है। उस स्टीम को वेपर बोलते हैं, बुखारात बनते हैं, यानी स्टीम बन जाता है, वो गैस बन जाता है, और वो गैस ज्यादा देर कायम नहीं रहती। यहां पर पहले नाम की जंग शुरू हुई है। मां ने ही उसको गलत नाम दिया है, जिसके नाम का मतलब ही गैस है, जिसके नाम का मतलब ही पानी का बुलबुला है, गैस है, वेपर है, और सांस है, दम है, फूंक है। उसकी उम्र कैसे लंबी हो सकती है? इसीलिए काइन ने अपने भाई हाबल को कत्ल कर दिया, और उसकी उम्र लंबी नहीं थी, क्योंकि उसके नाम के अंदर ही उसकी लॉन्गेविटी लिखी थी। पानी जब औरतें गर्म करती हैं और वो ऊपर जब स्टीम लगती है वो भाप बन जाता है,
फिर जब वो भाप ठंडी होती है फिर वो पानी बन के फिर पानी में गिर जाता है, उसका ये सर्कल चलता रहता है। इस तरह मतलब है कि ना वो पानी रहता है ना वो भाप रहता है, उसके नीचे सेक लगता रहता है और वो पानी भाप बनता रहता है। इट मीन उसकी जिंदगी मुश्किल नहीं होती, उसकी जिंदगी लंबी नहीं होती। जब यहाँ हवा ने अपने बेटे को नाम वेपर दिया, वहीं पर उसका मतलब क्या हो गया कि उसकी उम्र लंबी नहीं होगी। इसे कहते हैं नाम की बैटल, नाम की जंग। मैं नहीं जानता तेरे नाम का मतलब क्या है। आज कोई तेरा दुश्मन तुझसे फाइट नहीं कर रहा, तेरा नाम तुझसे फाइट कर रहा है, तेरा नाम तुझसे झगड़ रहा है। और तेरा नाम तेरी बरकतों को, तेरे फायदों को, तेरे पैसों को, तेरी तरक्की को रोक रहा है। पर जो कोई तेरा नाम है, तेरे नाम के ऊपर जो कोई भी लानत है, आज की सर्विस में टूटने वाली है, आज की सर्विस में टूटने वाली है। रॉन्ग नाम बहुत बड़ी सजा है, रॉन्ग नाम बहुत बड़ी सजा है। बच्चे बड़े समझदार होते हैं, फरिश्ते उनके साथ होते हैं, पाखरू उनके साथ होता है। उसने कहा इन बच्चों का फरिश्ता आसमान पर मेरे बाप का मुंह देखता है। मैंने प्रैक्टिकल तजर्बा किया है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई वो जो हम बोलते हैं वहम नहीं है। अक्सर बच्चे जब उनको नाम देती हैं चड़ेलों की तरह, जो नानियां दादियां होती हैं, या चड़ेलों की तरह जो मासियां फूफियां होती हैं, चड़ेलों नुमा, चड़ेल नुमा, आपकी चड़ेल नुमा नहीं, आपकी अच्छी है, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, जिनकी चड़ेल नुमा उनके लिए बात कर रहा हूं। अगर ऐसी चड़ेल नुमा दादी नानी फूफी मासी चाची ताई नाम देती है किसी बच्चे को, इनका नाम मैं ही रखना है, इनका नाम मैं ही रखना है, जी टाका दे हाथ रख के गल करे, नाम मैं ही रखना है, कभी ना रखना। समझ आ रही है? जब नाम रखा जाता है बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चा डरना शुरू कर देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चा आपको साइन दे रहा है, ये नाम मुझे नहीं पसंद, ये नाम मुझे नहीं पसंद, ये नाम मेरे पे रास नहीं आएगा, ये नाम मुझे सारी जिंदगी रुलाएगा। बच्चे का रोना सुन ले, वो नाम ना दे जो इंज हाथ कर करके रख दिए मैं ना रखांगी, वो नाम ना रखे, वो नाम बच्चे का नाम तमाम कर देगा। हालेलुया। बच्चे रिजेक्ट कर रहे होते हैं, बच्चे रिजेक्ट। यहाँ चर्च में कई बच्चों के नाम मैंने दिए हैं, वो आते हैं जी मेरा नाम फलाने ने रख देता है, नाम उन्हें रखा, उसके बाद बच्चा बीमार है, बच्चा सूख गया, बच्चे को सोकड़ा हो गया, बच्चा पीलिया हो गया, बच्चे को नमूनिया हो गया, बच्चे को डायरिया हो गया। नाम चेंज करें, नाम चेंज करें। बच्चा वो नाम नहीं कबूल कर रहा, वो रो रहा है, वो टॉर्चर में है। बच्चा जब रो रहा है वो अपनी पेन आपको बता रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, उसको अल्फाज नहीं आते, उसके आंसू उसकी दर्द का जवाब है। उसकी दर्द को समझे उसके आंसू में। उसका नाम ना रखें जो नाम किसी दिया है। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के पास आए, चर्च में आए, खुदा के घर में आए, खुदा के कलाम के अंदर से उसका नाम दे, किसी ड्रामे फिल्म से नाम ना दे। हिंदू को समझ आ रही है? तो यहां पर मौत देने वाली, छोटी उम्र करने वाली कोई और नहीं, सकी मां थी। कह रही तेरा नाम हाबल है। तेरा नाम क्या है? हाबल। हाबल मतलब धुआं, बुखारात, भाप। भाप है, जब तुझे ठंड मिलेगी तू फिर क्या पानी बन जाएगा, जब तुझे सेक मिलेगा फिर तू भाप बन जाएगा। यानी तेरी जिंदगी मुस्तकिल नहीं होगी, तेरी जिंदगी लंबी नहीं होगी, छोटी जिंदगी, छोटी जिंदगी। और उसकी मां ने उसकी जान ले ली, गलत नाम दिया। हालेलुया। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्या और हुआ है। दूसरी जंग किसने लड़ी है नाम की? हम देखेंगे यशवा की किताब 24 बाब 2 आए, पैदाइश की किताब 17 बाब 5 है, पहले पढ़ेंगे यशवा 24:2। नाम की जंग। तेरा नाम आज चेंज होने वाला है, तेरा नाम आज पाक होने वाला है, तेरा नाम आज डिलीवर होने वाला है, तेरा नाम आज ब्लेस होने वाला है। पढ़ेगा दूसरा यशवा, क्या लिखा है? क्या लिखा है यशवा में? यशवा 24:2। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे आबा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे मबूदों की प्रस्तिश करते थे। आमीन। तारा को हमने पहले मैसेज में भी डिस्कस किया है, आज तारा को हम नाम के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। यशवा खड़ा हुआ है, उसने कहा तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार रहते थे, मुझे उनका एड्रेस भी पता है, दरिया के पार रहते थे, बुतों की पूजा करते थे, और तुम्हारे बाप तारा उसके मजहबों की वजह से इब्राहिम पर
लानत थी, क्योंकि उसने वो बुतों से नाम लेकर, स्टैचुओं से नाम लेकर, वो झूठे खुदाओं से नाम लेकर, जैसे हम ये हिंदुओं में नाम राम देखते हैं, इसलिए इब्राम बे ही लगा हुआ है, बाकी राम ही है, बाकी उसके नाम में क्या है, राम ही है। तो असल में राम होती थी वहां पर भी, तो उसका नाम इब्राम कर दिया, बस उसमें ए डाल दिया, आगे राम लिख दिया। ठीक है, क्या डाला आगे, शुरू में ए लिख के आगे राम लिख दिया, तो क्या नाम बन गया, इब्राम। तो उसका नाम इब्राम था। तो वो दरिया के पार रहते थे, बुतों की पूजा करते थे। यशवा जो मूसा का शागिर्द था, उसे सारा मुकाशफा पता था, क्योंकि खुदा ने मूसा के जरिए, खुदा ने मूसा पर, मूसा ने यशवा पर आश्कारा किया, और खुदा का बंदा यशवा यहाँ बता रहा है कि तारा इब्राम नाम दिया है, यानी राम से निकला हुआ था, तो खुदा ने इब्राहिम कर दिया। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? यहाँ इब्राहिम 100 साल की उम्र में बाप नहीं बना, 25 साल अमीर नहीं हुआ, 12 बाप में उसकी खुदा से मुलाकात हुई, खुदा ने उसे बरकत दी। 17वें बाप में खुदा दोबारा आया, इब्राहिम बेऔलाद था और इब्राहिम गरीब था, पर उसने खुदा को सारी सैक्रिफाइस दे दिए, बाप दादा का घर छोड़ दिया, रिश्तेदार नातेदार छोड़ दिए, सारे सैक्रिफाइस दे दिए। उसके बावजूद मैंने बताया नाम एक गेट है, कहना है ग्रो हायर, नाम एक गेट है। रूहानी आलम में आपका मेरा नाम गेट का काम करता है। गेट लोगों को आने देता है और आने से ब्लॉक करता है। आपके ऊपर जो बुलाहट है, आपकी जो कॉलिंग है, आपका जो गिफ्ट है, और आपके ऊपर जो थोड़ा सा ऑयल है, वो बरकतों को अट्रैक्ट करता है। हमारे ऊपर का ऑयल, हमारा गिफ्ट, हमारा टैलेंट, हमारी असाइनमेंट बरकतों को अट्रैक्ट करती है, और आपकी दुआएं, आपके हदिये बरकतों को अट्रैक्ट करते हैं। नोट कर ले ये सारी चीजें, आपकी दुआ, आपका रोजा, आपका हदिया, आपका तोहफा, आपकी असाइनमेंट, आपका गिफ्ट, आपकी टैलेंट, आपकी ऊपर जो छोटी सी अनॉइंटिंग है, आग का शोला, बरकतें अट्रैक्ट करता है, पर वो आपकी जिंदगी में नहीं आते, क्योंकि नाम एक रूहानी आलम में गेट की तरह है। किसकी तरह है? रिपीट करें, गेट की तरह है। गेट, गेट, बोले गेट, गेट बरकतों को रोकता है और बरकतों को। तो खुदा जब आया, उसने देखा कि मैंने 12वें चैप्टर में ऑलरेडी बरकत दे दी है, पर ये अमीर नहीं हुआ। उसने देखा इसका नाम राम से जुड़ा हुआ है, यानी इब्राम। उसने कहा अब से तेरा नाम इब्राम नहीं इब्राहिम होगा। उसने जब नाम दिया, उसने गेट खोल दिया और वो अमीर हो गया और वो बाप बन गया। आज आपका नाम जो गेट की तरह बंद है, मैं खोलने आया यीशु के नाम से, मैं खोलने आया यीशु के नाम से, मैं खोलने आया यीशु के नाम से, मैं खोलने आया यीशु के नाम से। उसने कहा जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खोल जाएगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंद हो जाएगा। मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आपके नाम के गेट को मैं खोल देता हूँ, आपके नाम के गेट को मैं खोल देता हूँ। तो ईवल नाम, बुरा नाम, शैतानी नाम, मजहबों का नाम, जादू टोने वाला नाम, गलत नाम, जिसका नाम का मतलब सही नहीं है, वो गेट की तरह बरकतों को ब्लॉक करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बरकतें ऑलरेडी आपके अकाउंट में है, आपके सर पर लटक रही हैं, आपके सर पर हैंग है, पर वो आपकी लाइफ में नहीं आ रही, आपके हाथों में नहीं आ रही। आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी नौकरी, आपका वीजा, आपकी लैंड, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आ रही। बरकतें हैं पर वो उस गेट से ब्लॉक है, और वो गेट कोई और चीज नहीं, आपका अपना जाती नाम है। जरा इमेजिन करें, नाम में इतनी ताकत है कि यहोवा के बोली बरकत रोक दी है। आपकी मेरी बरकत क्या चीज है? यहोवा ने 12वें चैप्टर में खुद बरकत दी, पर वो बरकत रुक गई जब उसने नाम चेंज किया, नाम को एडिट किया, बरकत रिलीज हुई है। आज की सर्विस में आपके नाम का गेट खुलने वाला है, आपके नाम का गेट खुलने वाला है, क्योंकि तारा ने जो नाम दिया था वो शैतानी मजहबों से जुड़ा हुआ था। हालेलुया। हवा ने जो नाम दिया, वो नाम क्या था? उसके नाम का मतलब गलत था।
अब भी बुखार आ वेपर, इसलिए वो मर गया। लंबी उम्र नहीं थी। यहाँ इब्राहिम गरीब है क्योंकि मजहबों से उसका नाम है, बुतों से, स्टैचुओं से उसका नाम लिया गया। हालेलुया। आगे चलते हैं। तीसरी नाम की जंग किसने लड़ी? इसका नाम हम देखेंगे पहला शमूएल 4:18 से 21। जब उसने खुदा के खलक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पिछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बूढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इसराइल का काजी रहा और उसकी बहू फनास की बीवी हमल से थी और उसके तो उसने जब दाई ने उसे यह माजरा बताया तो उसने मरते मरते अपने बच्चे का नाम इकाबूद रख दिया। उर्दू में यकाबूद, इंग्लिश में इकाबूद, जिसका मतलब है जलाल चला गया, हशमत चली गई, शौहरत चली गई, तरक्की चली गई, शान चली गई, ताकत चली गई, पावर चली गई। उसने ये मनहूस नाम अपने बेटे को दे दिया। इवन इकाबूद जवान भी हुआ, उसके बाप ने या किसी बड़े ने उसका नाम चेंज नहीं हुआ। सारी जिंदगी जब भी वो तरक्की के करीब जाता, जब भी वो कामयाबी के करीब जाता, जब भी वो किसी डील के करीब जाता, उसकी बरकत चली जाती, क्योंकि उसके नाम का मतलब क्या है? हशमत चली गई, कुदरत चली गई, पावर चली गई, जलाल चली गई। जलाल जाता रहा। इकाबूद, उसकी माँ ने उसको गलत नाम दिया जिसके नाम का मतलब गलत था। उसके नाम के पीछे उसकी फीलिंग, उसकी एक्सप्रेशन और उसके हालात थे, क्योंकि इस्राएल का अहद का संदूक चला गया। मैं नहीं जानता कि सिचुएशन ने तेरे बाप ने तुझे नाम जुम्मे का दिया है, मंदा दिया है। आज जब कारोबार नहीं चलता था पुराने जमाने में, वो लड़के को नाम देते तेरा नाम मंदा है। अबू मेरा नाम मंदा क्यों रखा? बेटा जो तू पैदा ऐसे हालात बड़े मंदे सन, तेरा नाम मंदा है, तो उसकी जिंदगी मंदी हो जाती है। ऐसे निकम्मे बेकार नाम दिए जाते हैं हालात की वजह से, पुराने जमाने के। पर अगर तुझे कोई ऐसा नाम दिया गया है, मैं तेरे नाम को रिस्टोर करता हूं। तेरा नाम ना सिर्फ बोला जाए, क्योंकि नाम एक प्रोफेसी है, नाम एक डिक्लेरेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि पावरफुल नाम बाइबल में एना को देखते हैं। एना का मतलब ग्लोरी है, ग्रेस ऑफ गॉड है, खुदा का फजल है। जब जब नाम बोला जाता है फजल इंक्रीज होता है। जैसे मेरा नाम क्रिस्टी है, मतलब क्या? मंसू, अनॉइंटिंग। जितना मेरा नाम लिया जाता है उतनी अनॉइंटिंग मेरी लाइफ पर इंक्रीज होती है। आमीन के बाद मारो वाली है। तो अनॉइंटिंग आपका नाम डिक्लेरेशन है। इसलिए अफ्रीकन कल्चर में वो बच्चे को नाम प्रिंस दे देते हैं, बच्चे को नाम किंग दे देते हैं, बच्चे को नाम ब्लेसिंग दे देते हैं, बच्चे को नाम फेवर दे देते हैं, और बच्चे को नाम वो वेल्थ दे देते हैं, ब्लेसिंग दे देते हैं, प्रॉस्पेरिटी दे देते हैं, रिच दे देते हैं। जब वो नाम बोला जाता है ऑटोमेटिकली लोग जब उसका नाम ले रहे हैं, वो बच्चा अमीर हो जाता है, वो बच्चा ब्लेस हो जाता है, क्योंकि नाम एक डिक्लेरेशन है, एक आपके लिए ब्लेसिंग है। हालेलुया। आखिरी और मैं क्लोज करूंगा, पहला तवरीख 4:9 और 10। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है कि आपका नाम गेट है जिसने आपकी बरकतें रोकी हुई हैं, और ये गेट जब ओपन होगा बरकतें रिलीज होंगी। किसी ने इस गेट को लॉक किया है, या आपका नाम मजबे पर गया है, बाप दादा के मजबे की वजह से ब्लॉक है, या आपका नाम गलत है जिस वजह से ब्लॉक है, या आपका नाम किसी दुश्मन ने दिया है जिस वजह से लॉक है, या कैटेगरी है। कुछ लोगों का नाम का मतलब ही गलत है, कुछ लोगों का नाम शैतान के मजबे से है, और कुछ लोगों का नाम भी ठीक है, मतलब भी ठीक है, पर उनके दुश्मनों ने शैतान के मजबे पर जाकर उनके नाम को लॉक कर दिया है, जिसलिए बरकतें नहीं आ रही। नाम लॉक है, नाम बंद है, नाम पर कर्ज है, नाम पर जादू टूना है, बरकतें नहीं आ सकती। इसलिए जब भी बाबे पीर के पास जाते हैं, वो कहते हैं ना दास दे उदा, अब्बू का नाम दस दे, अम्मी का नाम दस दे, केड़े दिन पैदा होया, मैं आपे बंदोबस्त कर लेना। वो नाम को लॉक लगाता है। पर गुड न्यूज ये है, आज की सर्विस में मैं होली एंगर के साथ आया हूं। जिस किसी ने भी जादू टूना किया है, तेरे नाम पर कर्ज किया है, तुझे डिले में डाला है, तुझे भांजपन में डाला है, तुझे कर्जे में डाला है, तुझे बर्बादी में डाला है, तुझे गुर्बत में डाला है, तेरे नाम को लॉक किया है, तेरी शादी बांधी है, तेरी शादी बर्बाद की है, मैं वो लॉक तोड़ने आया हूं, मैं वो लॉक तोड़ने आया हूं, मैं वो लॉक तोड़ने आया हूं। मैं पढ़िएगा पढ़िएगा
पहला तबरीक 4 बाब 9 और 10। और यबेस अपने भाइयों से मोजिज था और उसका जाबेज अपने भाइयों से ज्यादा इज्जतदार था। जाबेज अपने भाइयों से ज्यादा इज्जतदार था। Jabez is more honorable among his brethren. Jabez is more honorable among his brethren. जाबेज अपने भाइयों में सबसे ज्यादा इज्जतदार था। और उसकी माँ ने उसका नाम जाबेज रखा था। जाबेज का मतलब है दुख का बेटा, मुसीबत का बेटा, परेशानी का बेटा, बुरे हालात, दुख, मुसीबत, परेशानी। जाबेज को बाहर इज्जत मिलती थी पर अंदर वो पर्सनल इश्यूज का शिकार था, अंदर वो पर्सनल प्रॉब्लम्स का शिकार था। मे भी आपको वो बाहर से लोग देख रहे हो, आपकी बड़ी इज्जत है, आपका बड़ा नाम है, पर घर में जाते कुछ ऐसे मामलात हैं जो आप फेस कर रहे हैं। उस फेस होने की वजह कोई और है जिसने तेरे नाम पर लॉक लगाया है, तेरे नाम को बंद किया है। वो बंद ताले को मैं तोड़ने आया हूं। आमीन के बाद 2 लोगों की साइड से, जिसका आमीन ऊपर है उसका नाम रिलीज होने वाला है, नाम डिलीवर होने वाला है, नाम इफेक्ट, नाम का हर एक नेगेटिव इफेक्ट दूर होने वाला है। हालेलुया। यहां तवज्जो दीजिएगा, आखिरी पॉइंट मैं क्लोज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। याकूब मतलब धोखेबाज, यीशु का पलोठेपन का हक ले लिया और उस बाप से उसकी बरकत भी ले ली। उसके बावजूद मामू के घर में है, परेशान है। पलोठे की बरकत बहुत बड़ी बरकत है, वो ले ली है, तंगी में। पढ़ेंगे ये आयत पढ़ेंगे, समथिंग इज हैपनिंग। इस आयत से किसी की डिलीवरेंस होने वाली है। भी पास्टर ने बरकत दी है, वो बरकत लटकी हुई है। आपने जो भी हदिया देकर बरकत ली है, वो बरकत लटकी हुई है आपके नाम की वजह से। किसी ने नाम पर ताला लगाया है। नाम पर ताला लग जाए, भले आप हदिया लेकर बरकत ले, दुआ करके बरकत ले, रोजे रख के बरकत ले, खादमों से बरकत ले, वो बरकत जाहिर नहीं होती। और आप समझते हैं कि लगता खुदा के पास पावर नहीं है, लगता खादमों के पास पावर नहीं है। वजूहात उनकी नहीं है, आपके नाम पर लॉक लगा हुआ है। नाम का जो गेट है वो बंद है, नाम का गेट बंद है, नाम का जो गेट है वो बंद है, पर मैं खोलने आया हूं। Enough is enough. That devil is a liar. That devil is a liar. कितनों को समझ आ रही है? आ रही समझ आपको? कितने ब्लेस हो रहे हैं? 27-36। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया? क्योंकि यहाँ पर यीशु अपना गर्ज, अपना दुख, अपना रंज अपने बाप से शेयर कर रहा है कि मेरे भरा दा नाम किसी ने बड़ा सोच समझ के रखा है। ये बड़ा ही मनहूस भाई है मेरा, इसने मेरे पलोठे की बरकत भी ले ली है। इसने पापा एक दिन मैं भूखा था, मुझे रोटी नहीं मिली, शिकार नहीं मिला। ये बड़ा चालाक है मेरा भाई, इसने मुझे कहा कि ये सूप का प्याला मैं तुझे देता हूं, मसूर की दाल का प्याला, मसूर की दाल का प्याला ले, पर बरकत दे दे पलोठे की। इसने मेरी पलोठे की बरकत ले ली एक दाल के प्याले के बदले। और अभी रजा नहीं है, इसकी हवस, इसकी भूख, इसका भूखापन नहीं भरा। जो बरकत बाप तूने मुझे देनी थी, इसने वो भी ले लिया है। सही अदा किसी ने ना रखा है, एक चोर है, ये धोखेबाज है। याकूब का मतलब है धोखेबाज, याकूब का मतलब है चोर। तो चोर चोरी भी कर ले, चोर भूखा ही रहता है। चोर चोरी भी कर ले, कितनी भी चोरी कर ले, चोर 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 ही रहेगा, चोर अमीर नहीं होगा। ये सबूत मैं आपको दे रहा हूं। उसने कहा मेरा पलोठा भी ले लिया, पलोठे की बरकत भी ले ली, और तेरे से भी बरकत ले ली। क्या तेरे पास कोई बरकत नहीं? उसने कहा यही थी जो मैंने दे दी है। और वो रो रहा है, यीशु रो रहा है कि मेरे भाई ने मेरी दोनों बरकतें ले ली। पर याकूब की हालत देखे, वो अमीर नहीं हुआ, वो ब्लेस नहीं हुआ। चोर कभी अमीर नहीं होते। चोर चोरी करने वाले, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है, वो कत्ल करने, चुराने और हलाक करने के लिए आता है।
हिफाजत चर्च पाकिस्तान गौर से सुन ले, चोर कभी अमीर नहीं होते, धोखेबाज कभी अमीर नहीं होते। 24वीं आयत से, बदील बाब 24 से 26 दो आयतें पूरी पढ़े। और याकूब अकेला रह गया और बूट फूटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि फुफूट चली। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं। आमीन। ये केड़ी बरकत है? अब देख ले, पहली बरकत उसने बाप भाई की। इस्राएल में जो पलोठा होता है उसके पास बरकत होती है, वो सारी चीजों का वारिस होता है। उसने पलोठे की बरकत ले ली, मसूर की दाल के बदले थाल पहन के मां के साथ साजिश करके दूसरी बरकत भी ले ली। उसके बावजूद उसमें बरकत नहीं, जब तक उसकी मुलाकात खुदा के फरिश्ते से नहीं। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा तब तक तो मुझे, जब तक तू मुझे बरकत न दे। तो बरकत क्या मिली है? फरिश्ते ने देखा है बरकत तो ऑलरेडी है। पलोठे की बरकत भी ले ली है चोरी करके, और बाप की बरकत भी ले ली है, भाई की बरकत भी ले ली, बाप की बरकत भी ले ली। अब उसने देखा प्रॉब्लम बरकत का नहीं है। उसने नेम का गेट खोला है, नाम का दरवाजा खोला है और उसने कहा आज से तू याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल है। जैसे नाम तब्दील किया है उसकी कहानी तब्दील हो गई है। आज की सर्विस में खुदा आपके नाम को चेंज करके आपकी कहानी तब्दील करने वाला है, आपकी कहानी तब्दील करने वाला है, आपकी कहानी तब्दील करने वाला है। कदमों पर खड़े हो जाएंगे।